Well, good morning, dear students of class 8. Today, on 3rd of June, we start with our revision. We begin with the chapter number 1, that is matter. In this chapter now, in revision part, we will be covering a little quickly, the theory part. However, we will be discussing most or almost all of the questions which are given in your book, whether inside the book or whether they are the back of the book. So with the help of which you can make sure you update your notebook on time. And soon we will have a test as well, so we need to get ready for that. Okay, so let's start with chapter as the name suggests, matter. We already know that we've been going through the definition of matter. Anything that occupies space and has mass is called matter. कोई भी चीज जो है स्पेस ऑक्यूपाई अगर करेगी उसका मास होता ही होता है, वैसे उसको हम मैटर कहते हैं. ठीक है, तो यू नीड टू रिमेंबर मैटर is made up of millions and billions of particles. Now these particles, we have a general term particles, but these particles can be molecules, it can be atoms, it can be ions. Ions are charged particles, positive or negative charge, which you would study more in chemistry. Okay, so these are made up of millions of particles. Now, when these particles are held by forces of attraction and it is very strong. Now you need to remember that these particles have force of attraction between themselves. If this force of attraction is very strong, that state of matter is called solid. अगर किसी particles में जो attractive force कम है हम उसको liquid कह देते हैं, और अगर बहुत ही ज़्यादा कम है तो हम उसको gases कह देते हैं. ठीक है, we will study properties of solid, liquid and gases a lot. Now these properties that we are talking about, because the particles of liquids and gases can flow, so they are called fluid. So we need to remember that the three states of matter, solid, liquid, gas. Liquid and gases can flow. Because they can flow, they are called fluids. ठीक है, इस प्रॉपर्टी को हम फ्लूइडिटी कह देते हैं. ठीक है, ओके. नाउ वी डिस्कस दैट एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, मिलियंस बिलियंस ऑफ पार्टिकल्स, और ये पार्टिकल्स बड़ा स्ट्रांगली अट्रैक्टेड है तो सॉलिड है, पर अगर कम अट्रैक्शन है तो वो लिक्विड है, मतलब दूर दूर है और अट्रैक्शन भी कम है, और गैसेस में अट्रैक्शन जो है और भी कम है. नाउ दिस पार्टिकल्स जो हमें लगता है कि कोई स्टेट ऑफ मैटर है, जैसे आप एक वाटर लेते हैं. ठीक है, वाटर में हमें लगता है कि पानी का एक गिलास आपने लिया, आप उसको ऐसे टेबल पे रख दीजिए, हिलाइए मत, तो बड़ा आपको लगता है कि स्टिल वाटर है, जैसे मूव नहीं कर रहा. पर पार्टिकल्स जो अंदर उस पानी के हैं वो स्टेबल नहीं होते, वो स्टिल नहीं होते. दे आर ऑलवेज मूविंग एंड दे आर ऑलवेज मूविंग इन रैंडम डायरेक्शन, जिसको हम zigzag मैनर कहते हैं. zigzag मतलब कभी इधर कभी इधर कभी इधर, कोई इस पार्टिकल को कुछ डायरेक्शन का नहीं है, कभी वो इधर जा रहा है कभी इधर कभी इधर, इसको हम zigzag मैनर कहते हैं. ठीक है, तो so this constant zigzag or random motion of the particles of matter is also called Brownian motion. It was given by Robert Brown, a botanist. ठीक है, उन्होंने ये स्टडी किया था. उसमें उन्होंने स्टडी किया कि हर एक मैटर जो है वो पार्टिकल्स का बना है, और पार्टिकल्स जो होते हैं वो कभी भी स्टेबल एक जगह पे स्टिल नहीं रहते. दे आर ऑलवेज मूविंग इन सम zigzag मैनर, रैंडम मैनर. ठीक है, so this motion is called Brownian motion. Next, what we will study mostly is based on postulates of kinetic theory of matter. मैटर के हमने कुछ assumptions, postulates का मतलब assumptions होता है, जो हमने किए हैं, तो ये वेरी करती हैं फ्रॉम बुक टू बुक. उनका लैंग्वेज वेरी करता है, however the points are same. कई बुक्स में 5 होते हैं, कई में 6 होते हैं. So as per our book, I have listed these points in an easy manner. You can learn it from the book, you can learn it from here. I don't have any problem. This question
you would see in your long answer type question. So you need to remember this. ठीक है, आना चाहिए आपको, वो कहाँ से आता है आपको ये प्रॉब्लम नहीं। तो फर्स्ट पार्ट इज ऑल मैटर आर मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स which could be atoms, molecules और ions। कोई भी आप मैटर लीजिए, चाहे वो सॉलिड है, ये पेन, लिक्विड, वाटर वगैरह या गैस है, सब टाइनी पार्टिकल्स से बने। तो टाइनी पार्टिकल्स एटम, मॉलिक्यूल्स या आयंस कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। सेकंड, these particles are always in constant state of zigzag motion which is called Brownian motion, ठीक है। तो ये particles they are never still, they are always moving in some zigzag fashion as I told you. Now अगर वो मूव कर रहे हैं then the energy in the particle is due to its motion, क्योंकि वो मूव कर रहे हैं, उस मोशन की वजह से उसके पास एनर्जी है, उस एनर्जी का नाम काइनेटिक एनर्जी है which is due to motion of the particles. Fourth, with increasing temperature the kinetic energy of the particle increases, क्योंकि ये काइनेटिक एनर्जी जो होती है पार्टिकल्स की इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। तो एज टेम्परेचर इंक्रीजेस काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, सो यू नीड टू रिमेंबर, सॉरी इट्स नॉट स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर, इट इज काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सो मोर द टेम्परेचर मोर द काइनेटिक एनर्जी एंड लेस द टेम्परेचर लेस द काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। So if the kinetic energy is more, the particles move faster and they would collide with each other more vigorously at a faster rate. Fifth, the particles of matter has interparticle forces of attraction which is called intermolecular forces of attraction. इनको interparticle force of attraction भी कह सकते हैं, intermolecular force of attraction भी कह सकते हैं, इसको हम postulates of kinetic theory of matter भी कह सकते हैं और particle theory of matter भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये एक assumption है कि जो particles के बीच में जो है intermolecular force of attraction होती है, and it has been named intermolecular force of attraction, or the space, whatever the space between the particle is, it has been named as intermolecular space, ठीक है। इंटरपार्टिकल कह लीजिए, इंटरमॉलिक्यूलर कह लीजिए। तो इसके बेस पे हम काफी कुछ चीजें एक्सप्लेन करेंगे काइनेटिक थ्योरी को यूज करते हुए। लेट्स हैव अ लुक एट द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड लिक्विड्स दैट वी हैव। You are already familiar with the positioning of or the arrangement of molecules, the particles in solid, liquid and gas with the diagram which I have made at the top, ठीक है। तो सॉलिड्स में आप देख रहे हैं पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत कम है, दे आर वेरी टाइटली पैक्ड, क्लोजली पैक्ड। लिक्विड में दे आर लेस टाइटली पैक्ड और गैसेस में दे आर इवन लेस टाइटली पैक्ड, ठीक है। They are far away from each other. So solids में what we have is we have maximum intermolecular force and the least intermolecular space. Space सबसे मिनिमम होता है और force जो है intermolecular force वो सबसे ज़्यादा है solids में। Liquids में less intermolecular force as compared to solid and less intermolecular space. More intermolecular space than solids, ठीक है। तो सॉलिड्स के साथ कंपेयर करके हम देखें तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम हो जाती है और स्पेस बढ़ जाता है। लीस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एंड मैक्सिमम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस, ठीक है। तो गैस की ये मेन इन दो प्रॉपर्टीज के बेस पे सारी जो भी प्रॉपर्टीज आप सॉलिड या लिक्विड की या गैस में, जैसे सॉलिड हार्ड और रिजिड और हाई डेंसिटी के होते हैं, क्यों? बिकॉज दे हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लिक्विड्स लेस हार्ड, लेस रिजिड, लेस डेंसिटी, लेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये लीस्ट हार्ड है, लीस्ट रिजिड है, लीस्ट होती है डेंसिटी, क्योंकि वेरी लेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, वेरी वीक, तो उसकी वजह से बहुत दूर होते हैं तो डेंसिटी कम हो जाती है।
कंपैक्ट नहीं रहते, ठीक है। Solids, because of strong intermolecular force of attraction, cannot flow. Liquids, less intermolecular force of attraction, so they can flow a little. Very less intermolecular force of attraction, gases flow very easily. Then definite shape and volume, because of strong intermolecular force, it maintains its shape and also volume. Liquids, less intermolecular force of attraction, so shape is not fixed, but the volume is fixed. Least intermolecular force of attraction, no shape, no fixed shape, no fixed volume. Then negligible thermal expansion. That means if we heat solids, they expand very little because the molecules are very tightly packed, very strong intermolecular force of attraction. So thermal expansion is least, very negligible in solids. However, in liquids, we see little thermal expansion, more than solids of course, but not much. Gases, least intermolecular force, so on thermal expansion, molecules go further away, so they expand rapidly. High melting and boiling point, same reason, strong intermolecular forces of attraction. Liquids, less, because less intermolecular force of attraction. Least melting and boiling point, least intermolecular forces of attraction. Nil compression, because the intermolecular space in solid is very less, negligibly small, so they cannot be compressed. Liquids, little spaces in between liquid molecules, so they can be compressed a little. Gases, huge space is available, so they can be compressed very easily. Least kinetic energy, because forces of attraction are very strong, particles are only able to vibrate about its mean position. Okay? More kinetic energy, because particles, less intermolecular forces of attraction, so particles can go away from each other. ठीक है? पर बहुत ज़्यादा दूर नहीं, ठीक है? इतनी भी intermolecular force of attraction कम नहीं है. So more kinetic energy than solids. ठीक है? तो maximum kinetic energy is seen in gases. Because very weak intermolecular forces of attraction. Negligible diffusion. Diffusion होता है intermixing of two particles without any chemical reaction. ठीक है? कोई chemical reaction नहीं हो रहा और एक पार्टिकल जो है दूसरे पार्टिकल्स में मिक्स हो जाना. जैसे आप एक वाटर लीजिए, ट्रांसपेरेंट कलर होता है वाटर का, उसमें इंक का एक ड्रॉप डाल दीजिए. अब इंक जो है आप धीरे धीरे देखेंगे अगर ब्लू कलर की है तो धीरे धीरे वो सारा पानी जो ब्लू कलर का हो जाएगा. तो कैसे हुआ कि जो ब्लू कलर इंक के जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स थे उन्होंने वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच का स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया. इस प्रोसेस को हम डिफ्यूजन कहते हैं. हमने उसको स्टर भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, इट हैपेंस ऑटोमेटिकली. तो सॉलिड्स दे डोंट डिफ्यूज इजीली. लिक्विड्स डिफ्यूजेस, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया वाटर एंड दैट इंक. गैसेस डिफ्यूजेस वेरी रैपिडली. ठीक है? गैस, अगर आप इस रूम की पार्टीशन करते हैं तो एक तरफ आपने ऑक्सीजन गैस ली है, दूसरी तरफ हाइड्रोजन. जैसे ही आप इसको हटाएंगे तो गैसेस बड़ी मूव रैपिडली करती है इधर उधर. एंड देयर आर मोर एग्जांपल. अगर आप स्प्रे करते हैं, आपने यहाँ पे इस तरफ स्प्रे किया तो रूम के दूसरे कॉर्नर में बड़ी जल्दी आपको खुशबू आ जाएगी. कोल्ड फूड जो है वो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं फूड के, ठीक है? उनकी स्मेल नहीं आती. पर जैसे हम हॉट फूड जब उसको माइक्रोवेव करते हैं तो उसके फिर फूड के क्या सॉलिड के वेपर्स बन जाते हैं. वो वेपर्स जो है फूड के वो ट्रैवल करते हैं थ्रू आउट द रूम मे बी एंड वी आर एबल टू स्मेल इट. ठीक है? सो थिंक अबाउट इट एंड वी विल स्टडी सम मोर क्वेश्चंस नाउ. If you will have questions, we will discuss theoretically, orally, and many of the questions are right on the board, so that you can note it down. So let's start with the few of the true-false question that is there in the book, inside the book. In gases, the particles collide with each other vigorously. That statement is true. Okay?
काफ़ी kinetic एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है गैसेस पार्टिकल में, तो इस वजह से वो एक दूसरे से बहुत ज़ोर से टकराते हैं. Solids and liquids are both fluids, that is false. Actually, not solids, liquids and gases are fluids. More the space between the particles, more the movement. Yes, true. More the space means intermolecular force is less. So less intermolecular force means the kinetic energy is more. Kinetic energy is more, the movement is more. Okay, usually this is the case in gases. Lesser the interparticle force, more will be the interparticle space. That's also true. I forgot to mention that while we were discussing about kinetic theory, you need to remember this part at the bottom, that intermolecular space is inversely proportional to intermolecular force. अगर intermolecular space ज़्यादा तो intermolecular force कम. Intermolecular space ज़्यादा means gases, intermolecular force कम. तो ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, दैट मींस एक दूसरे के उल्टे हैं. ठीक है, एक ज्यादा दूसरा कम. Now there are more questions that we have. Matter can neither be created nor be destroyed. True. It can only be changed from one form to another. Solid से liquid, liquid से gas. आप इसको create बना नहीं सकते, destroy मतलब खत्म नहीं कर सकते. ठीक है. Now there are some short answer type questions that we have. The first one, it says define matter. Is air a matter? So we already know the definition now. Anything that has space, that occupies space and has mass is called matter. Yes, air is a matter. Air is a mixture of gases. Okay? So air is a mixture of gases and many gases which occupies space and they have mass. So air is matter. Now arrange the three states of matter in ascending order. सबसे पहले छोटी, फिर बड़ी, फिर उससे बड़ी. Intermolecular force जिसका ज़्यादा है, तो intermolecular force में गैस का सबसे कम, फिर liquid, फिर solids. Intermolecular space में सबसे जो जिसका कम है intermolecular space वो है solid, उससे फिर ज़्यादा liquid, फिर gas. ठीक है? Why is it possible to compress gases but not solids? This is because there is a lot of huge intermolecular space available in gases. Okay, between the molecules of gases and between the molecules of solid there is no space. So no space to compress. Where would the molecules go? Okay. Give an example to show that the molecules are always in motion. Same examples that I gave you. We can smell perfume which has been sprayed in other corner. How come? Because the particles can move, they can travel. Whenever we all add salt to water and we don't stir it, so you leave it for some time. After some time you will see that the water becomes a little salty in flavor. How come that happens? That happens because the salt molecules have moved into water. Okay, then another we have short answer type questions. After true, false, fill in the blanks, I'll discuss that. But I'm just discussing the questions not in order. But if I'm beginning with short answer type questions, then I'm going through all of them. Those. Okay, the first one it says solids can. The second is solids can vibrate. I'm taking the second one first as written. The solids can vibrate only about its mean position, and that is because of strong interparticle forces of attraction. So solid में जो particles they can vibrate, yes. Why they can vibrate? They can vibrate only about its mean position. They cannot go far away from each other because of the strong interparticle or intermolecular forces of attraction. Water can exist both as solid ice and liquid water at 0 degrees Celsius. Give reason. Why? How?
तो freezing point of water or melting point of ice, freezing point of water or melting point of ice is at 0 degrees Celsius. So water can exist in both states, that is solid and liquid, at 0 degrees Celsius. क्योंकि आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी 0 डिग्री सेल्सियस है, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट भी 0 डिग्री सेल्सियस है, इसलिए वो दोनों स्टेट में एग्जिस्ट कर सकते हैं. बट द ओनली डिफरेंस इज दैट आइस मेल्ट्स बाय एब्जॉर्बिंग लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन टू फॉर्म वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस. दोनों में डिफरेंस क्या है कि आइस जो है उसके पास कम हीट है और वाटर जो 0 डिग्री सेल्सियस का है उसके पास ज़्यादा हीट है. ठीक है, इसीलिए आइस का कूलिंग इफेक्ट होता है. तो आइस जो है जितनी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है विच इज़ 80 कैलोरीज पर ग्राम, वो एब्जॉर्ब करके उसके बाद वो वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस बनती है. तो दैट इज द ओनली डिफरेंस. अदरवाइज दे कैन बोथ एग्जिस्ट एट 0 डिग्री सेल्सियस. ओके. Sound travels faster through solids than through liquids and gases. The particles in solids are very tightly packed. So sound travels faster in solids and is slowest in gases in general. तो आप ये ले लीजिए, इसको हम साउंड में या कहीं और चैप्टर में आएगा तो पढ़ते हैं. 8th में शायद लेटर पार्ट में है तो we'll discuss in detail. However, it is like, नहीं तो 9th में तो पक्का. आप ऐसा समझिए कि सॉलिड्स में हमने जैसे पढ़ा था या देखा था कि पार्टिकल्स एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं. तो आप ये लीजिए कि जैसे साउंड जो है वो पार्टिकल्स के फिजिकल कांटेक्ट से आगे बढ़ती है, क्योंकि सॉलिड्स में फिजिकल कांटेक्ट सबसे मैक्सिमम होता है, इसलिए साउंड जो है वो सॉलिड्स में मैक्सिमम होती है इन जनरल. और जो साउंड गैसेस में, क्योंकि पार्टिकल्स आर वेरी फार अवे फ्रॉम ईच अदर, इट ट्रेवल्स स्लोएस्ट इन गैसेस. ये बिल्कुल सुनने में उल्टा लगता है. लाइट जो है वो गैसेस में ट्रेवल फास्ट करती है. हाउएवर सॉलिड्स में तो लाइट जो है हमने देखा जैसे इस दीवार के उस तरफ लाइट नहीं ट्रेवल कर सकती, इट इज ओपेक. ठीक है, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक पड़ा था. तो ये वॉल जो है ये ओपेक में आती है. However, the sound can travel to the other side. ठीक है, तो साउंड को लाइट से कंफ्यूज नहीं करना. Both are different kind of waves. Okay. Next, what we have is heat transfer in solid is slower than that in gases. I want to leave this question for a minute. ये आपको देखना है, आप मुझे सॉल्व करके इसका आंसर बताइए डाउट क्लास में. आई वॉन्ट टू सी हू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम. ठीक है, देखेंगे इस क्वेश्चन में आप क्या समझे हो, इस चैप्टर में क्या समझे हो, इससे हम थोड़ा अंदाज़ा लगाएंगे आपके बारे में. ओके. द ड्रॉप इन टेम्परेचर रिजल्ट्स इन गैसेस बीइंग ट्रांसफॉर्म्ड टू लिक्विड्स एंड लिक्विड्स टू सॉलिड्स. Now see, there are questions whose answer can be given in many different ways. However, we have to restrain ourselves कि हम उसका आंसर जो है इस चैप्टर मैटर के हिसाब से, किनेटिक थ्योरी जो हमने ये मेल्टिंग, बॉइलिंग, ये प्रोसेस जो हम पढ़ने वाले हैं या पढ़ी हैं उनके हिसाब से देना है. तो अपना क्वेश्चन ये है कि ड्रॉप इन टेम्परेचर रिजल्ट्स इन गैसेस बीइंग ट्रांसफॉर्म्ड इनटू लिक्विड्स एंड लिक्विड्स टू सॉलिड्स. सो वी आंसर इट. अकॉर्डिंग टू किनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर, विद ड्रॉप इन टेम्परेचर ऑफ गैसेस इट्स किनेटिक एनर्जी आल्सो डिक्रीजेस. ये हमने पोस्टुलेट्स ऑफ किनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर में पढ़ा था कि जो किनेटिक एनर्जी होती है वो मोशन की वजह से पार्टिकल्स में होती है. इंक्रीज अगर टेम्परेचर होता है किनेटिक एनर्जी इंक्रीज, डिक्रीज होता है तो डिक्रीज. तो अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं, तो व्हाट वुड हैपन, द किनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ गैसेस वुड आल्सो डिक्रीज. They would come closer to each other. When they come closer to each other, their intermolecular force of attraction would increase, start increasing.
and it keeps on increasing and finally gases converts into liquids, and liquids, if we keep on dropping the temperature, liquids convert into solids. Next we studied that these are the forces of friction, intermolecular forces of friction, which is present there. Now there are two types of forces of friction, intermolecular forces of friction, forces of cohesion and forces of adhesion. मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, अगर आप kinetic theory of matter में नहीं लिखेंगे उसका नाम तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. But just because it's mentioned in the back exercise, there is a question, so I am addressing this. As I told you earlier as well, the force of attraction between the particles of same nature, similar kind, is called force of cohesion. जैसे आपने एक वाटर के ग्लास में आपने पानी लिया, दिस इज द वाटर, ठीक है? तो वाटर के जो यहाँ पे मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होते हैं, ठीक है? तो ये मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जो है, आई होप इट्स विजिबल, लेट मी ओके, तो ये जो हमने वाटर लिया है, वाटर के मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे, ठीक है? तो एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर की दूसरे मॉलिक्यूल के साथ भी अट्रैक्शन होगी. वो फोर्स कितनी स्ट्रॉन्ग है या वीक है या कुछ भी है, उसको हम फोर्स ऑफ कोहेजन कहते हैं. जैसे आप टेबल लेते हो, टेबल इज मेड ऑफ वुड, तो वो बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे वुड के, तो उनकी आपस में जो अट्रैक्शन है एक वुड के पार्टिकल की दूसरे के साथ, दैट इज कॉल्ड फोर्सेस ऑफ कोहेजन. ये आयंस में भी हो सकती है, विच यू वुड स्टडी लेटर इन केमिस्ट्री पार्ट, ठीक है? तो ये पार्टिकल्स मतलब एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी और आयंस, पर सेम तरह के होंगे तो फोर्स ऑफ कोहेजन, पर अगर डिफरेंट टाइप के होंगे तो फोर्सेस ऑफ एडिशन. कैसे? ये जो मॉलिक्यूल है वाटर के, ये ग्लास का मॉलिक्यूल है, ठीक है? बिकॉज़ दिस स्पीकर इज मेड ऑफ ग्लास. तो इन मॉलिक्यूल्स की आपस में, एक वाटर के मॉलिक्यूल की और ग्लास के मॉलिक्यूल में जो अट्रैक्शन है वो फोर्स ऑफ एडिशन कहलाती है, ठीक है? तो अगर फोर्स ऑफ एडिशन स्ट्रांग होगी तो ये वाटर जो है स्टिक कर जाता है. इसी की वजह से स्टिक करता है क्योंकि फोर्स ऑफ एडिशन जो होती है वाटर और ग्लास की, इट इज मोर देन फोर्सेस ऑफ कोहेजन बिटवीन टू वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है? हालांकि अगर हम मरकरी लें, याद आपको थर्मोमीटर में हम मरकरी लेते हैं, वी डोंट टेक इट एज वाटर, वी डोंट प्रेफर इट. रीजन इज दैट बिकॉज वाटर स्टिक्स टू द ग्लास, वो कैपिलरी जो है आपकी उसे स्टिक कर जाएगा फोर्स ऑफ एडिशन की वजह से. वेयर एज जो मरकरी हम लेते हैं उसमें फोर्स ऑफ कोहेजन, force of attraction between two mercury molecules is much more than force of adhesion between mercury molecule and that capillary, glass capillary, ठीक है? तो इसकी वजह से जो है मरकरी स्टिक नहीं करता टू द वॉल्स ऑफ द ट्यूब, इसी की वजह से हम थर्मोमीटर में उसको यूज करते हैं. दिस इज ऑल्सो वन मोर रीजन टू यूज मरकरी. शाइनी है, ट्रांसपेरेंट है, ठीक है? उसकी थर्मल कंडक्टिविटी अच्छी है, वो सारे फैक्टर्स भी हैं, पर ये भी एक फैक्टर है. अगर वो स्टिक कर जाएगा तो रीडिंग में वही गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है? ओके, मूविंग ऑन. ओके, नेक्स्ट इन लाइन वी हैव क्वेश्चन फर्स्ट. F part, define the following. So let's study a few of the definition. Force of cohesion, force of adhesion, I already told you. The force of attraction between particles of same kind. Example, attractive force between two water molecules. Force of cohesion. Force of adhesion, the force of attraction between particles of different kind is called force of adhesion. Example, attractive force between one molecule of water and another molecule of glass. Next is latent heat of fusion. Now, in order to understand the concept of latent heat, let me try and explain you a little bit theory part. जब भी हम किसी भी substance को heat करते हैं, whether it's in solid state or liquid state or in gas, कोई भी state में हो, जब आप उसको heat करते हैं, जो heat हम उस substance को provide करते हैं, it is used in doing two things.
या तो वो उस सब्सटेंस की काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करती है, और काइनेटिक एनर्जी का मतलब टेम्परेचर, ठीक है, या वो हीट यूज होएगी उसकी पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज करने में। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब ये है कि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। अगर पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करने की बात कर रहे हैं तो मॉलिक्यूल्स दूर जा रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करने का मतलब है मॉलिक्यूल्स पास आ रहे हैं, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस है। हीट एनर्जी यूज होती है मॉलिक्यूल्स की या तो काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करने में या डिक्रीज करने में, या हीट एनर्जी यूज होती है पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज या डिक्रीज करने में। बट रिमेंबर दिस थिंग, हीट एनर्जी एक ही टाइम में दोनों में से एक एनर्जी को इंक्रीज या डिक्रीज करती है। ये नहीं कि थोड़ी सी मैंने काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज डिक्रीज कर दी और थोड़ी सी पोटेंशियल एनर्जी कर दी, ठीक है। तो आई होप इट्स क्लियर। इफ आई एम गिविंग हीट टू अ सब्सटेंस, या तो उसकी उस वक्त काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होएगी क्योंकि हम हीट एनर्जी उसको दे रहे हैं, या फिर उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इंक्रीज होएगी, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने का मतलब है कि उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करने का मतलब है कि उसका स्पेसिंग बढ़ रहा है। स्पेसिंग की वजह से क्या हो सकता है, फेज चेंज। फेज को हम स्टेट चेंज, मतलब सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, ऐसे होने के चांसेस है, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंस, फॉर इंस्टेंस यू हैव आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो आप उसको हीट करना शुरू करते हैं। तो शुरू में जब आप उसको हीट सप्लाई करेंगे, आप देखेंगे धीरे धीरे उसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा, -10 से -9, -8, -7, -6। इसका मतलब ये है कि हीट एनर्जी जो हम सप्लाई कर रहे हैं वो उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रही है, जिसकी वजह से टेम्परेचर राइज हो रहा है। जब वो 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचता है तो हम हीट उसको सप्लाई करते हैं, पर उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करना बंद कर देती है क्योंकि टेम्परेचर कुछ नहीं राइज कर रहा, वो 0 डिग्री सेल्सियस पे आके टिक जाता है। धीरे धीरे हम ऑब्जर्व करते हैं कि जो आइस है वो मेल्ट होना शुरू हो जाती है। जब मेल्ट होना शुरू हो जाती है into its liquid state, टेम्परेचर पर फिर नहीं चेंज करता। तो अब सॉलिड स्टेट आइस से वो किस तरफ आ गई, लिक्विड स्टेट वाटर, मतलब उसकी पोटेंशियल एनर्जी, स्पेसिंग बिटवीन मॉलिक्यूल्स हैज इंक्रीज। तो वो हीट एनर्जी फिर कहाँ यूज हो रही थी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज करने में, ताकि स्टेट फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट फेज चेंज हो सके, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है लेटेंट हीट का। ऐसे ही जैसे आपने लिक्विड वाटर से वेपर्स बनाने हैं, तो आपको क्या होता है कि 100 डिग्री सेल्सियस तक पहले टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे रुक जाएगा, फिर आप और हीट सप्लाई कर रहे हैं, पर वो हीट टेम्परेचर में शो नहीं हो रही। अब देखो, हमें अगर जो मेजर करना है तो वो तो हम थर्मोमीटर से टेम्परेचर को मेजर करते हैं, पर वो बढ़ ही नहीं रहा, टेम्परेचर तो उतने का उतना ही है। दैट मीन्स दैट हीट इज बीइंग यूज्ड इन फेज चेंज, पर हमें वो शो नहीं हो रहा, इसीलिए हम उसको हिडन, लेटेंट मीन्स हिडन वर्ड यूज करते हैं। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग, ठीक है। जहां पे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन मेल्टिंग सेम चीज है, ठीक है। तो रिमेंबर दैट। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट, दिस इज द थ्योरी। नाउ 8th के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको सिर्फ डेफिनेशन याद करनी है, दिस इज व्हाट यू विल लर्न। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड पर यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस to change its solid state into its liquid state at its melting point, but without changing its temperature, ठीक है। तो मैं एक बार फिर पढ़ रहा हूँ। The amount of heat required per unit mass of a substance to change its solid state into its liquid state at its melting point without changing its temperature. तो एग्जाम्पल के तौर पे latent heat of ice, latent heat of fusion या latent heat of melting of ice is
80 कैलोरीज पर ग्राम। दैट मीन्स अगर 1 ग्राम आइस मेल्ट करनी है 0 डिग्री सेल्सियस वाटर तक लेके जानी है तो उसको 80 कैलोरीज हीट हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ठीक है। सिमिलरली लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड पर यूनिट मास of a substance to change its liquid state into its gaseous state at its boiling point without changing its temperature. And latent heat of vaporization of water अगर हम देखें that is 540 calories per gram. तो 1 gram of water needs 540 calorie. 100 डिग्री सेल्सियस वाटर से वो 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम बन जाएगा, वेपर फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है। तो रिमेंबर सॉलिड से ज्यादा हीट लिक्विड में होती है, लिक्विड स्टेट में, लिक्विड स्टेट से ज्यादा हीट होती है गैसियस स्टेट में। डिफरेंस किस चीज का होता है? वो एक्स्ट्रा क्या है? वो लेटेंट हीट है। ठीक है। सॉलिड में और लिक्विड में कितना फर्क आएगा? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का, लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग का। लिक्विड स्टेट और वेपर स्टेट में कितना हीट का फर्क आएगा? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का। ठीक है। सो यू नीड टू रिमेंबर दैट एंड वी विल टेक इट अप फ्रॉम देयर। तो ये चीज अब क्लियर है कि सॉलिड के पास हीट एनर्जी कम होती है। सॉलिड स्टेट में एनर्जी, वो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की फॉर्म में और वो लिक्विड बनता है। एंड देन लिक्विड जो है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन एब्जॉर्ब करता है और वो वेपर फॉर्म में बनता है। सो दैट मीन्स आइस, जैसे द बेस्ट एग्जांपल इज वाटर, इट एग्जिस्ट इन ऑल 3 स्टेट्स इन आवर डेली लाइफ, वी हैव सीन इट। आइस सॉलिड स्टेट में हमने देखा है, हमने वाटर लिक्विड फॉर्म में तो देखा ही देखा है, और वेपर फॉर्म में स्टीम वगैरह प्रेशर कुकर में या ये वो कुकिंग में हर रोज हम देखते हैं। तो आइस जो है वो सबसे ठंडी है, उसके पास सबसे कम एनर्जी है, इसीलिए इसका कूलिंग इफेक्ट है। इफ यू पुट आइस इन कोल्ड ड्रिंक वो उसको ज्यादा ठंडा करती है। व्हाई? बिकॉज आइस वुड एब्जॉर्ब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 80 कैलोरीज पर ग्राम एंड देन इट वुड कन्वर्ट इनटू वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। अगर हम वाटर लेंगे 0 डिग्री सेल्सियस पे और उसमें पानी डालेंगे, ठंडा पानी 0 डिग्री सेल्सियस को ठंडा करने के लिए, तो वो जैसे ही हम डालेंगे उसका टेम्परेचर राइज करना शुरू कर देगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5। बट आइस पहले लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एब्जॉर्ब करेगी 80 कैलोरीज पर ग्राम, फिर वो कन्वर्ट होगी वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस में, उसके बाद उसका टेम्परेचर राइज करना शुरू करेगा। सो इट हैज मोर कूलिंग इफेक्ट। ठीक है। और कितना कूलिंग इफेक्ट है? दैट इज इक्वल टू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 80 कैलोरीज पर ग्राम। सिमिलरली स्टीम इज मोर डेंजरस देन वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। व्हाई? बिकॉज स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस possesses latent heat of vaporization which is equal to 540 calories per gram. ठीक है। So it causes more sphere burns. तो स्टीम के पास एक्स्ट्रा एनर्जी है, हीट एनर्जी है इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन 540 कैलोरीज पर ग्राम। तो पहले स्टीम को हीट एनर्जी रिलीज करेगी जिसकी वजह से हमारी स्किन बर्न हो सकती है, उसके बाद उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस आएगा, उसकी वजह से और हीट होगी तो हमारे बॉडी जो है, स्किन जो है वो बर्न्स कॉज करेगी। वेयरएज वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस अगर हमारे पास है तो वो बर्न कॉज करेगा, बट उसका टेम्परेचर साथ के साथ ही 100 से 99, 98, 97 होना शुरू हो जाएगा। तो स्टीम possesses extra heat energy in the form of latent heat of vaporization, which is equal to 540 calories per gram, which is the main cause of more sphere burns. ठीक है। अब नेक्स्ट अपने पास अगर हम डेफिनेशंस पे देखें तो वेपराइजेशन है। लेट्स हैव अ लुक एट दिस चार्ट। तो आई हैव मेड इन दिस चार्ट सॉलिड, देन लिक्विड और गैसेस। इनकी प्रोसेस के नाम है जिसमें हम डिफाइन करते हैं कि सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट या सॉलिड स्टेट से जो है गैसियस स्टेट या लिक्विड से गैसियस, गैसियस से लिक्विड, उनके हर एक प्रोसेस के नाम दिए हैं।
So there are few definitions which are already there in our definition part. First is vaporization. This is a process in which a liquid state of a substance changes into its vapor state. That process is called vaporization. तो vaporization जो है एक process है जिसमें लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में चला जाता है, ठीक है। सो दिस वी कॉल इट लिक्विड से, आप यहाँ पे देखेंगे वेपराइजेशन, ठीक है। वेपराइजेशन दो तरह की होती है, इवेपोरेशन और बॉइलिंग, तो उसको हम फर्दर बाद में स्टडी करेंगे, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ वेपराइजेशन। देन वी हैव नेक्स्ट डेफिनेशन एज बॉइलिंग। जैसे मैंने डिस्कस किया, वेपराइजेशन की दो टाइप्स होती हैं, इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग। The boiling में the process in which the whole of the liquid changes into its vapor state at a fixed temperature called boiling point of that liquid. This is called boiling. तो boiling एक process है और एक boiling point होता है। Boiling point एक fixed temperature होता है। We need to know the difference. I told you in the previous video as well. We need to be very clear about this thing. कि ये सब प्रोसेस के नाम है, फ्रीजिंग, मेल्टिंग, कंडेंसेशन, वेपोराइजेशन, सब्लिमेशन, डेपोजिशन, ठीक है। जैसे हमने कहा बॉइलिंग इज अ पार्ट ऑफ वेपोराइजेशन। नाउ दिस वेपोराइजेशन जो होती है वो दो तरह की है, इवेपोरेशन और बॉइलिंग। जब हम करेंगे तो डिफरेंस आपको क्लियर हो जाएगा। तो बेसिकली बॉइलिंग में क्या होता है कि सारे का सारा लिक्विड जो है फिक्स टेम्परेचर, जिसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, उसमें सारे का सारा लिक्विड जो है वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। देन वी हैव इवेपोरेशन। दिस इज अ प्रोसेस इन विच लिक्विड चेंजेस इनटू इट्स वेपर स्टेट बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि यही डिफरेंस है। बॉइलिंग होता है एट और अबव बॉइलिंग पॉइंट, इवेपोरेशन होता है बिलो बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अगर हम एग्जांपल के तौर पे देखें तो इवेपोरेशन में ड्राइंग ऑफ वेट क्लोथ्स, जो आप गीले कपड़े जो हम धोने के बाद सूखने के लिए डालते हैं, तो वो इवेपोरेशन प्रोसेस से सूखते हैं, ठीक है। देन वी हैव फ्यूजन। फ्यूजन प्रोसेस जो है उसको हम मेल्टिंग भी कहते हैं। तो दिस इज अ प्रोसेस इन विच सॉलिड स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस changes into its liquid state at its melting point or at its freezing point, ठीक है। तो melting point और freezing point की वैल्यू सेम रहती है। जैसे आप कह सकते हो melting point जो आइस का है that is 0 डिग्री सेल्सियस, as we already know. Similarly, freezing point of liquid water is 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन सेम चीज है। कंडेंसेशन, द प्रोसेस इन विच अ गैसियस स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस चेंजेस इनटू इट्स लिक्विड स्टेट एट कंडेंसेशन पॉइंट, ठीक है। गैसियस स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड स्टेट एट कंडेंसेशन पॉइंट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। या फिर ये जो कंडेंसेशन है, जैसे गैसियस अपने पास वेपर स्टेट में वाटर है, दैट कंडेंसेस टू फॉर्म लिक्विड स्टेट वाटर, ठीक है। देयर आर मेनी एग्जांपल्स यू कैन कोट ऑफ कंडेंसेशन। इफ यू पुट आइस इन अ ग्लास टम्बलर, अगर कोल्ड ड्रिंक में आइस डालेंगे, यू वुड सी दैट वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द सरफेस ऑफ द ग्लास। दैट इज बिकॉज ऑफ द कंडेंसेशन प्रोसेस। जो एयर में जो वाटर वेपर है वो कंडेंस करके ग्लास के ऊपर आ जाता है। ड्यूरिंग फॉगी सीजन आप कार में भी देखेंगे कि वाटर ड्रॉपलेट्स जो है कार के जो है विंडशील्ड और ग्लास के ऊपर या आपकी विंडो स्क्रीन के ऊपर आके डिपॉजिट हो जाते हैं, ठीक है। Next is solidification, which is also, as I told you, is called freezing. The process in which a liquid state of a substance changes into its solid form at its freezing point. So, liquid से solid state at freezing point. Freezing point हर एक सब्सटेंस का डिफरेंट होता है। जैसे हम लिक्विड वाटर की बात करें तो फ्रीजिंग पॉइंट लिक्विड वाटर का 0 डिग्री सेल्सियस। तो मेल्टिंग, अगर हम बात करें किसी भी सब्सटेंस की, मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट सेम होता है। सिमिलरली
अगर हम बात करें कंडेंसेशन पॉइंट और किस पॉइंट पे वो बॉयल करता है वो सेम होता है, ठीक है। So this is all about definition. Next part of question that I just want to take up quickly is to give examples of two examples of each of the following. Question number 1 E part. Then we have force of cohesion. Force of cohesion जैसे मैंने आपको पहले ही कहा, force of attraction between two molecules of water, ये एक example हो सकता है, या force of cohesion between two molecules of mercury आप दे सकते हैं। Force of addition, force of attraction between one molecule of water and one molecule of glass, ये हो सकती है, different होने चाहिए वो, या फिर molecule of water and mercury। अगर आप मर्करी और मर्करी भी लिक्विड स्टेट में होता है, वाटर भी लिक्विड स्टेट में अगर आप मिक्स कर दें तो उनमें आपस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एंड मर्करी, उसको भी आप फोर्स ऑफ एडिशन में एग्जांपल में ले सकते हैं। इवेपोरेशन की एग्जांपल ड्राइंग ऑफ वेट क्लोथ्स, जो गीले कपड़े हम सूखने के लिए डालते हैं, और ड्राइंग ऑफ स्वेट व्हेन वी स्विच ऑन द फैन स्पेशली ड्यूरिंग समर टाइम, ठीक है। सब्लिमेशन में नैप्थलीन बॉल्स और कैंफर बॉल्स if are kept in open they vanish after few days, ठीक है, वो गायब हो जाते हैं। तो why do they do that? Because they sublimate। ये हम इनको sublimal substances बोलते हैं, जिसमें आपका नैप्थलीन, कैंफर, ड्राई आइस which is solid carbon dioxide। solid carbon dioxide जो होती है, आपने मूवीज में देखा होगा कि जो बर्फ वगैरह जो दिखाते हैं, that actually is solid carbon dioxide because it looks like ice, इसलिए इसको dry ice भी बोलते हैं because it appears like ice, ठीक है। तो dry ice, solid carbon dioxide changes directly into gaseous carbon dioxide due to sublimation। तो ये दो एग्जांपल आपकी sublimation की होगी। deposition को हम desublimation भी कहते हैं, तो don't confuse between two। फॉर्मेशन ऑफ फ्रॉस्ट इज द बेस्ट एग्जांपल। बहुत ठंडा वेदर जब होता है, एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर, फ्रीजिंग टेम्परेचर, तो जो वाटर वेपर एयर में प्रेजेंट है दैट डायरेक्टली वो वाटर वेपर सीधे ही आइस बन के जमा हो जाते हैं, ठीक है। दे डोंट फॉर्म वाटर ड्रॉपलेट्स, दे डायरेक्टली डीसब्लिमेट इनटू आइस। एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है उसको अंडर लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर इट चेंजेस इनटू सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड और ड्राई आइस। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ deposition or desublimation. So these are the few questions that I have discussed. So we will keep on discussing questions in the next class or video lesson as well. So keep watching, keep learning. Please make a note of these questions, though they are not in serial order. You can make a note on it in your rough notebook. In the next video lessons, we will complete more, and soon we will end this chapter so that you can note it down in your fair notebook. Thank you. Take care. Bye.